Everyone and welcome to episode 16 of Study Guide। तो आज की जो हमारी वीडियो अगेन इट्स अबाउट अनदर बिजार सब्जेक्ट जो कि ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी बहुत से बच्चों को ना इट अनोइज देम। इवन आई एज अ स्टूडेंट डिड नॉट लाइक ज्योग्राफी अ लॉट, इवन दो इट गॉट मी एन ए स्टार, बट आई डिड नॉट लाइक इट बिकॉज ज्योग्राफी बहुत फैक्चुअल है। देयर इज़ हार्डली एनी राइटिंग इन इट। यू मोस्टली हैव टू लर्न थिंग्स, एंड इफ़ यू हैव टू लर्न थिंग्स तो उनका कंसेप्ट ग्रास्प करना होता है क्या उनको एज इट इज़ आपको आना चाहिए। यू कैन नॉट देयर इज़ नो एनालिसिस और स्टफ लाइक दैट इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो आज का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो भी कुछ ऐसा ही है, मोस्टली फैक्चुअल। तो इसलिए द नोट्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस आर गोइंग टू बी फ्रॉम द बुक, मेनली फ्रॉम द बुक। इसलिए आई कीप ऑन स्टेइंग इंसिस्टिंग कि ज्योग्राफी के लिए तो आप लोगों को बुक से उठना ही नहीं चाहिए। जस्ट कीप ऑन रीडिंग द बुक, गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड रीड, कीप ऑन रीडिंग इट, एंड the most of the things that I'm going to share today are also going to be facts, but I'm going to help you with this today, however, which will make your geography learning easier, or this chapter easier, is the way we're going to do it. We're going to do it with content points. So let's begin with our episode 16 study guide आज जो कि है on the chapter of population from your geography syllabus. So without any further ado, let's dive in. So population. The first content point of ours in this video is going to be the population growth. नहीं बल्कि पॉपुलेशन ग्रोथ से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है ज़रा 2 मिनट के लिए क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक पॉपुलेशन इज़? आपके ओपिनियन में व्हाट इज़ पॉपुलेशन? इज़ इट द पीपल इन अ कंट्री, और इज़ इट द पीपल इन द वर्ल्ड, और इज़ इट पीपल एज अ होल? व्हाट डू यू थिंक पॉपुलेशन इज़? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। तो I hope you've thought about it and you know the answer by now. If you know the answer, then that's good. Write your answer down first and then I'm going to tell you my answer. What Google says, or what the literal proper definition of population is, all the organisms of the same group of species living in a particular geographical area. Now when you listen to this definition, the first thing you are going to say, हाँ मतलब geography का ही chapter है, you know, when we're talking about a geographical area. But exactly that is what we're going to talk about. जब हम geographical area की बात करते हैं या जब हम लोग population in geographical area की बात करते हैं, there are a lot of things that we have to consider in that. वो area, क्योंकि area पे वो directly indirectly population depend करती है या उसको affect करती है. So there's a lot of things that we're going to talk about. The first thing that we're going to talk about is the population growth. Now the population growth is related to the birth rates, death rates and migration. Now what are the birth rates? How many people are born? What are the death rates? How many people die? And what is migration? How many people come and leave from, or enter or leave from a nation? ठीक है. Now here are some statistics. March 1998 में the population of Pakistan was 130.58 million. 2012 में it became 180.71 million. Now what could be the reason for this? Decline in the death rate. ठीक है, because of better access to medical facilities. This is written wrong, not military, medical facilities. ठीक है. Decline in death rate. Decline in death rate क्यों होता है? जब हम लोग में अच्छी बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं जो हमें ट्रीट कर सकें, हमारी इलनेसेस को ट्रीट कर सकें। पहले ज़मानों में ये नहीं होता था तो लोग मर जाते थे, अब ये है तो नहीं मरते, सीधी सी बात है। नेचुरल इंक्रीज़ एक्सक्यूज़ मी, नेचुरल इंक्रीज़ को हमारे पास एक चीज़ होती है नेचुरल इंक्रीज़। नेचुरल इंक्रीज़ क्या होता है? द चेंज और द डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट। तो नेचुरल इंक्रीज़ का एक फार्मूला होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट हमेशा डेथ रेट से ज़्यादा होता है, दैट इज़ इफ वी आर स्ट्रक विद सम फेमाइन और समथिंग। ठीक है, सो ये हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, हमारे बेसिक पॉइंट्स जो कवर करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है और कैसे होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। कैसे हो सकती है? जब बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स और माइग्रेशन इंक्रीज़ कर जाए, डेथ रेट्स डिक्रीज़ कर जाए, बर्थ रेट्स और माइग्रेशन इंक्रीज़ कर जाए विद इन अ कंट्री। रीजन्स फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ: ओवर पॉपुलेशन, child labor, early marriages, religious beliefs, migrations, desire for sons, illiteracy, inconsistent government policies. Now let's start from the first one, overpopulation. मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगी
ओवर पॉपुलेशन जो होती है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें हम लोग, ये कैसे होती है ओवर पॉपुलेशन क्या होती है, जब द पॉपुलेशन एक्सीड्स एन एक्सपेक्टेड अमाउंट या लिमिट, ठीक है। अर्ली मैरिजेस से क्या होता है, अर्ली मैरिजेस से ये होता है कि लाइक व्हेन गर्ल्स गेट मैरिड अर्ली तो दे स्टार्ट गिविंग बर्थ इन एन अर्लियर एज, सो दे कैन बेसिकली गिव बर्थ टिल अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स सपोज आपकी 16 साल में शादी करवा दी जाती है, so let's suppose the first child you're going to have, बहुत हद होगी तो you're going to have the first child at 18, that is me talking about the rural areas, ठीक है। तो the first child you can have at 18, and 18 is still a very young age to have a child, ठीक है। तो 18 से लेके 35 तक, let's suppose 40 is too much, 35 तक तो you can still have babies. So imagine 18 to 35, there's a long list of years and then you can have a lot of babies even if you give a gap of 2 to 3 years in between. तो दैट इज़ अगेन अनदर रीज़न ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर रिलीजियस बिलीफ्स क्या होते हैं कि जी फैमिली प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी कंट्रसेप्शन और यू नो प्रोटेक्शन यूज्ड एंड देयर शुड नॉट बी अबॉर्शंस एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। अबॉर्शंस वायरल वैसे ही डिनाइड है। माइग्रेशंस होती हैं जब एक शहर से दूसरे शहर में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बंदा आता है। जब एक मुल्क से सपोज पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आके रहने शुरू हो जाए, माइग्रेशन कब हुई थी, लेट मी टेल यू, द बिगेस्ट माइग्रेशन हुई थी जब इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हुआ था। तो इंडिया से जो लोग थे वो पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से जो लोग थे इंडिया में गए थे। तो जब वो लोग इधर आए थे तो ऑटोमेटिकली आवर पॉपुलेशन ग्रू, ठीक है। फिर डिज़ायर फॉर सन्स, दीज आर सम ऑफ द वेरी बेसिक रीजंस आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। डिज़ायर फॉर सन्स, this is a very commonly known thing, you know, when daughters keep on happening and they keep on trying to have a son. Again ये वो early marriage वाले उसमें आ जाता है। illiteracy, again फैमिली प्लानिंग की नॉलेज नहीं होती लोगों के अंदर कि हाँ हम लोग 2 बच्चे पाल सकते हैं, हम सिर्फ 2 ही प्लान करेंगे, ये नहीं होता लोगों के अंदर, ठीक है। सिमिलरली उनके अंदर इतनी नॉलेज नहीं है बिकॉज दे आर इलिटरेट, दे डोंट हैव द एजुकेशन and inconsistent government policies. We're going to skip this point because this is not really reliable, ठीक है। हम आगे जाके जब गवर्नमेंट से रिलेटेड की बात पढ़ेंगे तब हम लोग इस पॉइंट को फर्दर डिस्कस कर लेंगे। measures taken or solutions, population welfare programs, मतलब इसको काउंटर करने के लिए हमने क्या काम किए। सबसे पहले पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम्स में हमारे पास ग्रीन स्टार क्लिनिक्स आ जाते हैं, विमेन एसोसिएशन आ जाती है। नाउ ग्रीन स्टार क्लिनिक्स और विमेन एसोसिएशन क्या करते हैं, ग्रीन स्टार क्लिनिक्स जो होते हैं दे आर देयर टू गिव यू नॉलेज, टू गिव फैमिली प्लानिंग नॉलेज एंड स्टफ लाइक दैट। विमेन एसोसिएशन विमेंस को एजुकेट करने के लिए होती है कि एज अ विमेन वो अपनी फैमिली कैसे प्लान करें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अपनी हेल्थ को देखते हुए। अभी मैंने आपको बताया ना कि 18 से 35 तक तो easily you can reproduce, you can give birth, a woman can give birth, but there are a lot of side effects of this. If a woman births a lot, yeah, if she gives a lot of you know babies, तो it can affect her health adversely. तो औरतों को ये बात पता होनी चाहिए, सही है, so that they can plan their babies as well. फिर इंक्रीज़ इन लिटरेसी रेट, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। लिटरेसी में इंक्रीज़ होगा तो लोगों को फैमिली प्लानिंग का पता चलेगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होती है, दी डेवलपमेंट या अर्बनाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज़ की भी कह सकते हैं, बेसिकली जहाँ पे हम रूरल एरियाज़ को डेवलप करें। फिर सर्विसेज फ्राम उल्लेमास जो है वो ये है कि मैंने ऊपर बात की कि रिलीजियस बिलीफ से वी आर गोइंग टू नेगोशिएट विद उलेमास, दे टेल द पीपल कि फैमिली प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, या कॉन्ट्रसेप्शन या फिर प्रोटेक्शन कैसे यूज़ की जाती है, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। फिर फीमेल एजुकेशन प्रमोटेड, ये बात तो मैं ऊपर भी कर चुकी हूँ, ठीक है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, अगेन द सेम थिंग। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ को काउंटर करने के लिए हम लोग यूटिलाइजेशन बेटर करते हैं। कैसे बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं, हम लोग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बायोफ्यूल्स, इंजन्स, वो सारी चीज़ें भी अभी आगे डिस्कस होंगी। ये हमारी बहुत बेसिक स्टार्टअप था। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, कैसे होती है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह क्या होती है, उनको अभी तक हमने कैसे काउंटर किया। अभी हम आगे बात करते हैं कि इनसे प्रॉब्लम्स क्या कॉज होती हैं। प्रॉब्लम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फूड इनसिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, बर्डन ऑन मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़, shortage of water supply, electricity crisis, lack of educational institutions, child labor, burden on transport resources, burden on housing facilities, rise in crime due to unemployment. Now, these are a lot of problems जो कि cause हो सकती हैं due to the growth
पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फूड इनसिक्योरिटी कैसे कॉज होती है। जब लोग बढ़ जाते हैं और खाना कम पड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स देयर आर मोर पीपल, देयर आर लेस जॉब्स, यू कैन हैव अनएम्प्लॉयमेंट। बट इन मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़, अगेन जितने लोग ज़्यादा लोग होंगे the more they're going to grow, the more they're going to be health problems, the more they're going to be problems, सही है। तो हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, उन पर भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। आजकल यू माइट हैव सीन, यू माइट हैव हर्ड कि जी हमारे पास कोरोना पेशेंट्स के लिए वो भी नहीं थे, वेंटिलेटर्स हॉस्पिटल्स में वर्ड्स नहीं थे हमारे पास उनके लिए। सो यस, यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, अगेन ये वो फूड इनसिक्योरिटी वाली बात आ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वही बात टाइम एंड अगेन रिपीट होगी कि जितने ज़्यादा लोग पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है इस पॉपुलेशन को केटर फॉर करने के लिए, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स अक्कर होती है। और इन प्रॉब्लम से फर्दर प्रॉब्लम्स अक्कर होती हैं, जिससे कि हमने बात की कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है कैन गिव राइज टू क्राइम। जब लोगों के पास पैसे कमाने की कोई जगह नहीं होगी तो ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू टर्न टुवर्ड्स द रॉन्ग मीन्स। अब किसी के घर में खाना खाने के पैसे नहीं तो दे आर गोइंग टू टर्न टुवर्ड्स रॉबरी एंड स्टफ लाइक दैट। But how to solve this issue, and this is again from your book, you guys have to go through this on your book, ठीक है। ये कुछ बेसिक तरीके हैं, ये 4 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, ये 6 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ बेसिक तरीके हैं, ठीक है। क्रिएट अवेयरनेस विद द हेल्प ऑफ NGOs थ्रू फैमिली प्लानिंग कैंपेन्स, प्रोवाइड चीप कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू पॉपुलेशन, imposing a ban on child labor to reduce dependency on child's income, increase literacy rate, provide education facilities in rural areas, focusing on female education, introduce skill development programs, effective management, comprehensive planning, resources and not supporting our needs. So to start on ये वाला point जो है ना उसको cover करते हैं, imposing a ban on child labor वाले पे। Many people want children because they think the children could work for them and earn money for them. तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि चाइल्ड लेबर जो है उसको बैन कर देना चाहिए। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लोगों ने बात की इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जितना लिटरेसी रेट इंक्रीज़ करेगा उतना ही लोगों में नॉलेज होगा, उतना ही लोगों में इल्म होगा कि फैमिली प्लानिंग कैसे होती है, ठीक है। और फीमेल एजुकेशन की भी हम बात कर चुके हैं पीछे, कि फ़ीमेल एजुकेशन इंक्रीज़ होने से फ़ीमेल को पता होगा कि उससे अपनी हेल्थ के लिए क्या स्टेप्स उठाने और क्या नहीं उठाने। फिर डेमोग्राफिक, ये डेमोग्राफिक मॉडल भी आपकी बुक के अंदर, यू डोंट हैव टू चेक दिस आउट ओवर हियर, ठीक है। ये जो डेमोग्राफिक मॉडल है ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क या हाउ इट इज़ वर्किंग इज़ दिस के जो डेमोग्राफिक मॉडल है दे आर टेलिंग यू ईयर टू ईयर, वो आपको बता रहे हैं कि क्या चीज़ इंक्रीज़ कर रही है, क्या चीज़ डिक्रीज़ कर रही है, एंड देन वाई इन दो सर्टेन ईयर्स ये चीज़ क्यों हो रही है। सो यस, ये डेमोग्राफिक मॉडल गो थ्रू इट, ये कभी कभी टेबल बन के या चार्ट बन के आ जाता है आपके पेपर के अंदर। Population structures. Population pyramid indicates high birth rate leading to a high dependency ratio. Fall in death rates with more people in middle age group, slightly longer life expectancy. ठीक है, ये पॉपुलेशन pyramid जो है वो इंडिकेट करते हैं। हाई बर्थ रेट causes burden on economic resources, negative effect on economic growth. Smaller proportion of the 15 to 60 age group means less independent income generating people. ये आपका स्ट्रक्चर ये चीज़ इंडिकेट करता है और उस इंडिकेशन से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। दिस इज़ व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ अगेन इन योर बुक एज वेल। Employment is again a very important part when you're talking about population. देखिए, population is good. It's not like high population growth is bad, but it is only bad when a major part of it is unemployed. अगर ज़्यादातर लोग जो हैं they are unemployed and they don't have a source of income, तो ना तो कंट्री बेनिफिट होगी, ना तो उस बंदे का कोई सरमाया होगा, और ना ही ज़िंदगी का कोई आगे गुजारा होगा, ठीक है। एंड देन इट कैन लीड टू न्यूमरस प्रॉब्लम्स। सो यस, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। पहले तो हम प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की बात करें। प्राइमरी सेक्टर में 45% होते हैं लोग, सेकेंडरी सेक्टर में 14% और 41% लोग हमारे पास होते हैं टर्शियरी सेक्टर में। हमने स्किल्ड और अनस्किल्ड की भी बात की हुई थी। प्राइमरी सेक्टर इज द ग्रेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन लार्ज स्केल इन रूरल एरियाज। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि लाइक जैसे वो किसी ने मास्टर्स किया हुआ है और वो कहीं पे बस क्लर्क लगा हुआ है, क्लर्क, हाँ कहीं पे क्लर्क लगा हुआ है, या कहीं पे
कहीं भी कोई मतलब अपनी क्वालिफिकेशन से बहुत कम लेवल की जॉब कर रहा है, तो दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. वाई इज दिस सो मच अ लार्ज नंबर ऑफ employment in rural areas? People are illiterate, unskilled. People are from rural areas. They disguise unemployment and they require children and women labor. Rural areas में ज़्यादा employment की होती है. ये 4 पॉइंट्स जो लिखे हुए ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है. पहली बात, पीपल आर इलिटरेट एंड अनस्किल्ड. रूरल एरियाज़ में जो सारी जॉब्स होती हैं दे आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. इसलिए वहाँ पे हम लोगों को जो लोगों की ज़रूरत होती है वो इतनी स्किल्ड हमें लेबर की ज़रूरत नहीं होती, तो हर बंदा वहाँ पे काम कर सकता है. ठीक है. दूसरा, पीपल आर फ्रॉम रूरल एरियाज़, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज़ में जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, टारगेटेड है. जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं ऑब्वियसली वहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और वहीं पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी. फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की हमने बात कर ली है कि एक मास्टर्स किया हुआ बंदा जो है वो एक रूरल देहात में जो है वो किसान लगा हुआ हो, लेकिन उसको पैसा मिल रहा है, उसको नौकरी मिल रही है, तो वो करेगा काम, सीधी सी बात है. फिर रूरल एरियाज़ के अंदर जो है दे रिक्वायर चिकन चिल्ड्रन एंड विमेन लेबर एज वेल. चिल्ड्रन एंड विमेन लेबर जो होता है अगेन इट इज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर. तो रूरल एरियाज़ में तो बहुत कॉमन होता है, औरतें भी काम कर रही होती हैं, बच्चे भी खेतों में काम कर रहे होते हैं, बड़े भी कर रहे होते हैं, मर्द भी कर रहे होते हैं. तो ये इस वजह से रूरल एरियाज़ में जो है देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. फिर द नेक्स्ट सेक्टर दैट वी कैन टॉक अबाउट इज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट की कॉजेज़ क्या होती हैं? हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, रेवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रूरल अर्बन माइग्रेशन, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन स्किल्स, इलिटरेसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. नाउ व्हाट आर दीज कॉजेज़ मीनिंग? जो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो होती है कि लोग ज़्यादा हैं, जॉब्स कम हैं. ठीक है. मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर. मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर का मतलब है कि यार देखो मोस्टली पीपल आर इन एग्रीकल्चर बिकॉज दे डोंट नो स्किल्स. फिर जहाँ पे मशीन्स लग जाएंगी, मशीन लोगों का काम करनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर लोग तो वहाँ से फारिग होते जाएंगे. लेट्स सपोज दिस अ पर्सन हु ना फिली वोंका की मूवी थी ना, वो टूथपेस्ट फैक्ट्री वाली, उसमें चार्ली के जो बाबा थे ही यूज टू कैप टूथपेस्ट. ठीक है. लेकिन द ओनर गॉट टूथपेस्ट जो कैप करने वाला होता है, ही गॉट अ मशीन इंस्टेड ऑफ दैट. तो उसके बाप को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया. द सेम थिंग हैपन्स ओवर हियर. व्हेन यू कैन फाइंड अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ ह्यूमन बीइंग दैट इज़ अ मशीन, तो ऑब्वियसली ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट तो फिर कम होगी. रेवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. दिस इज़ ऑब्वियसली क्लियर एज एनीथिंग. जो हमारी रेवोल्यूशन है, जो हमारी डेवलपमेंट है, वो हमारे वक्त से बहुत आगे की है. एज इन वी आर फार बिहाइंड द रेवोल्यूशंस दैट हैव हैपेंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट. ठीक है. तो रूरल अर्बन माइग्रेशन अगेन ये अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा राज है. लोग कहते हैं कि हम लोग देहातों से निकल के जल्दी से जल्दी शहर में आए. जब शहर में लोग आते हैं तो शहर में ऑलरेडी इतने लोग हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो आप शहर में आके कहाँ से नौकरी ढूंढेंगे? फिर लैक ऑफ स्पेशलाइज, ये हमने बात ऊपर भी कर ली है कि लोगों के पास अभी इतनी स्पेशलाइजेशन स्किल्स है ही नहीं. हमारे पास पाकिस्तान में मोस्टली अनस्किल्ड लेबर है. और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं. अभी इमरान खान साहब ने कहा कि ना पेंशन मिलेगी, इतनी एज पे हम लोग वो भी कर देंगे, रिटायर भी कर देंगे, एज लिमिट भी कम कर दी है और पेंशन भी निकाल दी है, तो फिर तो लोग अनएम्प्लॉय होंगे ना. इसके इफेक्ट्स क्या है? लैक ऑफ जॉब्स, लेबर नॉट रिक्वायर्ड, मैनुअल वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड, नो जॉब्स इन अर्बन एरियाज, नो हायरिंग, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, अनफेवरेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ये वही इफेक्ट्स हैं जो मैंने अभी डिस्क्राइब किए. Solutions: training programs, manpower planning, more employment opportunities in rural areas, literacy rate increases, development of cottage industries, better favorable political situations. अब जो मैंने आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन दी है कॉजेज़ की, ये सोल्यूशंस उन्हीं को ठीक करने के लिए. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे तो लोगों के अंदर क्या नाम है इसका, इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा होगी कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है. ऐसे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कंट्रोल होगी. मैन पावर प्लानिंग होगी तो हमें समझ आएगा कि हम लोगों ने कम मशीनरी और ज़्यादा लेबर रिक्वायर यूज़ करना है. फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो ऑटोमेटिकली हम लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. लिटरेसी रेट इंक्रीज़ होगा तो लोगों को स्किल्स आएंगी, लोगों को सीखेंगे वो काम. दे आर गोना बी एजुकेटेड एंड दे आर गोना नो हाउ टू वर्क विद द ग्रोइंग और द डेवलपिंग वर्ल्ड. डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं. अगर इनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाए तो लोग भी ऑटोमेटिकली
they're going to grow, they're going to be more employment opportunities for them. Then better favorable political situations, ये भी हमने बात कर ली है. Effect on economic growth, underutilization of human resources, low income generation, less GDP, GNP, lack of foreign investment, reduction in customer experience. ये हमारी ज़रा geographical terms आ जाती हैं. अब इधर बात करते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स होती है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ पे हमने बात की है. जो ह्यूमन रिसोर्स होती हैं, सॉरी एक सेकेंड, ये उनकी अंडर यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है. जब हम लोग एक इंसान चलते फिरते स्किल्ड इंसान की जगह एक मशीन को ला के खड़ा कर देंगे तो हम उसको अंडर यूटिलाइज ही करें ना. ठीक है, हम उसको एक्सप्लॉइट तो नहीं करें. फिर लो इनकम जनरेशन, ऑफ कोर्स द लेसर द पीपल एम्प्लॉयड, द लेसर द इनकम विल बी जनरेटेड, लेसर द इनकम विल बी जनरेटेड, द लेसर विल बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री. फिर लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारे पास स्पेशलाइज्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है. ठीक है. और फिर रिडक्शन इन कस्टमर एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन कस्टमर एक्सपेंडिचर भी क्यों होगा? कस्टमर एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब लोग खर्च करते हैं पैसा आपके ऊपर. कस्टमर एक्सपेंडिचर यानी कस्टमर ख़रीदने वाला और एक्सपेंडिचर खर्च करने वाला. ये कब होगा? जब लोग आप लोगों पे कम पैसा खर्च करेंगे. वो क्यों कम पैसा खर्च करेंगे? क्योंकि उनके पास पैसा खर्च करने के लिए होगा ही नहीं. जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होंगी, जब उनके पास काम ही नहीं होगा, तो वो पैसा कैसे खर्च करेंगे? सो दिस वाज दिस एंटायर पेज 1 एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी और एम्प्लॉयमेंट भी. ठीक है. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, इस पेज को एज इट इज़ देखें. गो थ्रू इट फॉर अ मिनट. ये पेज कुछ भी नहीं है. दिस इज़ जस्ट टेलिंग यू दी फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग दी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन. ठीक है. फिज़िकल फैक्टर्स क्या होते हैं? फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं हमारा वेदर कंडीशंस, हमारी लैंड, हमारा क्लाइमेट, हमारा प्रोविजन ऑफ फूड एंड वाटर, हमारा लैंड की बात कर ली मैंने, और हमारी प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज इन एन एरिया. ये हमारे सारे एरियाज़ हैं जो बेस्ट हैं और जो लीस्ट हैं. ठीक है. बस ये आपने एज इट इज़ देख लेना. ये भी शायद मैं हाल से ये आप लोगों की बुक में है, ये ग्राफ टेबल, ये एज इट इज़ देख लें. ये इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं. दीज आर जस्ट कंट्रीज़ जिनके जिनके अंदर ज़्यादा ये है और ज़्यादा नहीं है. ठीक है. अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूँ तो नेचुरल टोपोग्राफी से मुराद है कि कहाँ पे हमारे पास अच्छे लैंड्स होंगे अवेलेबल. ठीक है. जहाँ पे अच्छे लैंड्स अवेलेबल होंगे ऑफ कोर्स ज़्यादा लोग वहीं पे सेटल करेंगे, क्योंकि उन्हें सपोज किसी ने एग्रीकल्चर कोई किसान है, कोई फार्मर है, तो उसने वहीं पे जाना है ना जहाँ पे उसको अच्छी खेती मिलेगी. सिमिलरली क्लाइमेट का भी यही सीन है, जहाँ जिधर अच्छा मौसम रहता होगा लोग वहाँ पे सेटल करना पसंद करेंगे. They won't prefer hot heated areas. फिर natural vegetation again, going back again to the farmer valley example. Soil का भी again going back to the farmer valley example. Natural resources जहाँ पे easily available. Of course हम लोग घर भी select कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसी जगह पे जहाँ पे गैस बिजली पानी का कोई इशू ना हो. तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी भी ऐसे ही होती है. पॉपुलेशन डेंसिटी का फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एरिया. ठीक है. ये फर्दर हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं वही पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड. वाटर सप्लाई जहाँ पे ज़्यादा, मैंने भी आपको बात की गैस बिजली पानी वाली बात. और नेचुरल रूट्स, ईजी रूट्स, बेसिकली ईजी रूट्स. ठीक है. जब हम लोग नारायण का गानी, हम लोग किसी नदरन एरिया जा रहे होते हैं तो वी प्रेफर कि हम गाड़ी भी वो वाली रखें जो हमें रास्ते में इशू ना करें. हम प्रेफर करते हैं कि हम हर रास्ता देख लें कि हम उस रास्ते पर से जाएँ जो सबसे सेफेस्ट हो. तो ये वही वाली बात हो गई है. ठीक है. और ह्यूमन फैक्टर्स में हमारे पास इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं. इकोनॉमिक से क्या मुराद है हमारी? जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, जहाँ पे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलें, जहाँ पे ज़्यादा बिजनेस सेंटर्स, मार्केट्स वगैरह हों. ठीक है. और पॉलिटिकल से हमारी क्या मुराद है? वो वाली कंट्रीज़ या वो वाले एरियाज जिधर पॉलिटिक्स या जहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो फेवरेबल हों. जैसे कराची को बड़ा फेवर करती है हमारी गवर्नमेंट, इस्लामाबाद को बहुत फेवर करती है, लाहौर को बहुत फेवर करती है, ये प्लान सिटीज़ हैं इनको बहुत फेवर करती है. तो हम लोग कहते हैं हम इन कंट्रीज़ के रहने वाले हैं, हम इन कंट्रीज़ में रहते हैं, सिटीज़ में. सॉरी, आई कीप ऑन सेइंग कंट्रीज़, आई एम सो सॉरी. एंड देन सोशल फैक्टर्स में अगर मैं आपको एक बड़ी कॉमन एग्जांपल दूँ तो हम कहते हैं कि हमारे पेशावर वाली साइड पे या कोयटा वाली साइड पे बड़े हम कहते हैं कि जी वहाँ पे दहशतगर्द होते हैं, ये होता है या वो होता है, तो वहाँ पे सिर्फ नहीं जाते.
ठीक है, हम लोग कहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिज्म है तो हम वहाँ पे उस साइड पे नहीं जाते कि भाई इट इज़ नॉट सेफ़ और इट इज़ डेंजरस। सिमिलरली अगर हमने वैसे भी घर ख़रीदना हो तो हम लोग वो वाली जगहें देखते हैं जो कि सेफ़ हो। वी डोंट प्रेफर लिविंग इन स्लम्स और प्लेसेस जो कि डेंजरस हों या रिस्की हों। ठीक है, तो ये सोशल फैक्टर्स होते हैं सारे। आगे चलते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन होती है। अभी हम जो बात करेंगे ना, हम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम रूरल पुश फैक्टर्स और अर्बन पुल फैक्टर्स की बात करेंगे। रूरल पुश फैक्टर्स से क्या मुराद है, आप लोगों को क्या लगता है? रूरल पुश फैक्टर्स से वो सारी चीज़ों से, इससे ये सारी चीज़ें मुराद हैं जो कि एक बंदा जो कि रूरल एरिया में रहता है उसको फोर्स करता है अर्बन एरिया की तरफ आने में। इनमें हमारे पास आ जाती है प्रेशर ऑन लैंड, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिवीजन ऑफ लैंड इन सन्स, ओवर पॉपुलेशन, पुअर क्वालिटी, लिमिटेड फूड प्रोडक्शन, मैकेनाइजेशन, जॉब रिडक्शन, नेचुरल डिजास्टर्स। रूरल एरियाज़ में ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो बहुत ऑफन अकर करते हैं। ये वो सारे रीजंस हैं जो कि एक देहाती बंदे को या एक गांव वाले को मजबूर कर देंगे, जी नहीं तुम किसी बेटर जगह पे या किसी शहर की जगह पे जो है ना तुम घर लो। ठीक है, और अर्बन पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? वहाँ पे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ऑफ कोर्स रूरल के मुकाबले में अर्बन एरियाज़ में हमें ज़्यादा पैसों वाली नौकरियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, फिर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे बेटर क्वालिटी होगी चीज़ों की। हम लोग कहते हैं वहाँ पे बेटर फूड सोर्सेज होंगी वहाँ पे। और फिर रूरल एरिया पुल अर्बन एरियाज़ के कोर पुल फैक्टर जो है वो हमारी अट्रैक्शंस हैं, मार्केट्स, सेंटर्स, थिंग्स जो कि लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, बेटर सिविक सर्विसेज। यहाँ पे ये दो बातों की बात थी, यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर की, यहाँ पे बेटर सिविक सर्विसेज की। नेचुरल डिज़ास्टर्स रूरल एरियाज़ में बहुत ऑफन अकर करते हैं और अगर वहाँ पे अकर कर जाएँ तो रूरल एरियाज़ हमारे जो हैं वो इतने अनडेवलप नहीं है कि वो कैन ईज़िली कॉम्बैट थ्रू इट, लेकिन अर्बन एरियाज़ हमारे फिर किसी हद तक डेवलप्ड हैं। अब प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस इनकी जो हैं, प्रॉब्लम्स हाउसिंग सेटलमेंट्स हैं, पोल्यूशन डिग्रेडेशन है, ओवरबर्डन रिसोर्सेज हैं, इंक्रीज इन क्राइम रेट है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ सिटीज़। ठीक है, और सोल्यूशन में हमारे प्रोविजन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, अवेयरनेस, यूटिलाइज लोकल रॉ मटेरियल आ जाता है, एलोकेशन डेवलपमेंट फंड्स आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए। ये लिंक्ड हैं आपस में सारे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, ये भी आप देख लें। अगेन दे आर ओनली फैक्ट्स जो कि जिनकी डिस्क्रिप्शन वही इधर से चलती हुई आती है और वही आती है आगे नीचे भी। ये एक और तरीका इन्होंने जी। अब हम अगली चीज़ से बात करने लगे, वो है सेल्फ हेल्प स्कीम्स। सेल्फ हेल्प स्कीम्स हमारे पास क्या नाम आ जाता है? खुदा की बस्ती, कुरंगी, पैलेट प्रोजेक्ट। इनकी एडवांटेजेस क्या होते हैं? दे रिड्यूस पॉवर्टी, दे क्रिएट ए हेल्दी एनवायरनमेंट, दे मोटिवेट पीपल, दे हेल्प रिड्यूस क्राइम रेट्स, दे रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट, दे प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, इंक्रीज लिटरेसी रेट, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इनको कंस्ट्रक्ट करने के पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लॉस ऑफ फाइनेंसेस, करप्शन एंड मिस हैंडलिंग। जो लोग इन स्कीम्स को हैंडल करते हैं उनमें भी वो है गलत मिस हैंडलिंग है, मेल अलाइनमेंट है, मेल प्रैक्टिस है, टाइम टेकिंग काम है, मतलब इट इज़ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लैक ऑफ लीडरशिप। ऑफ कोर्स जो लोग ये काम करते हैं, जो स्कीम्स चलाते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली हैविंग लीडर्स, दे जस्ट रैंडम हेल्पिंग पीपल। They are increasing burdens on civic resources. There's political instability. Of course, political instability से NGOs और non-governmental organizations affect होती हैं, whether they call themselves non-governmental or not, लेकिन एक गवर्नमेंट से पूरा मुल्क अफेक्ट होता है। फिर नॉन कोऑपरेटिव पीपल, ठीक है, मैनेजमेंट, पीपल एंड मैनेजमेंट। इससे क्या होता है कि मोस्ट पीपल डोंट वांट देयर हेल्प। So yes, that is another issue. नेक्स्ट पार्ट है हमारा आउट माइग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक, आउट माइग्रेशन के रीजंस क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अच्छा, आउट माइग्रेशन का मतलब मैं पहले आपको बता दूँगी, तो मैं भूल गई। आउट माइग्रेशन से बताते हैं, अभी मैं पीछे माइग्रेशन की बात की थी। माइग्रेशन
कि ना बहुत सी किस्में होती हैं। पहले तो मैं आपको माइग्रेशन की टिपिकल डेफिनेशन बता चुकी हूँ। एक जगह से दूसरी जगह जाना इस माइग्रेशन। तो एक माइग्रेशन होती है जो कंट्री के अंदर होती है, और एक माइग्रेशन होती है जो कंट्री से बाहर जाके होती है। जो लोग पाकिस्तान से लेट्स सपोज कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं, ये आउट माइग्रेशन है। और जो लोग लेट्स सपोज फैसलाबाद से इस्लामाबाद आते हैं, वो इन माइग्रेशन या विद इन द कंट्री वाली माइग्रेशन होती है। रीजंस क्या होते हैं आउट माइग्रेशन के? अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन मिडल ईस्ट, लाइफ स्टाइल ऑफ एडवांस कंट्रीज, करप्शन, इनजस्टिस, फेवरेटिज्म, क्राइम्स, recent policy of Canadian government, political instability. A lot of reasons can contribute to out migration. सबसे जो पता है मैं क्या करती हूँ, जो रीजंस रूरल से अर्बन में मुझे पुल करते हैं ना, वही रीजंस मुझे एक कंट्री के अंदर से एक कंट्री के बाहर लेके जाएंगे। हम लोग बाहर क्यों जाना पसंद करते हैं? सबसे पहली चीज़, वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वहाँ पे हमारे पास हर किस्म की अपॉर्चुनिटी है, वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द कंट्री दैट वी लिविंग इन। ठीक है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, बेहतर हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, बेहतर हैं। फिर हमारे मुल्क में इतनी टेररिज्म है, हमारे मुल्क में इतना क्राइम रेट है, हमारे मुल्क में इतनी गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी है, तो उस सब को केटर कर, वो सब हमें बाहर के मुल्कों में नहीं नज़र आता, तो हम बाहर इससे जाते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? अब इसके बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स में हमारे पास रेमिटेंसेस आते हैं इन फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, जो बाहर जाते हैं वो बाहर से इल्म हासिल करके वापस मुल्क में ट्रांसफ़र करते हैं। प्रेशर ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रिड्यूस, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन ये अच्छा भी नहीं है, अच्छा है भी कि क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। जो लोग बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को वो करेंगे, तो मुल्क के अंदर हम लोग के जो एम्प्लॉयमेंट का बर्डन है वो कम होता जाएगा। More investment from overseas, obviously we are opening pathways. फिर helps from form strong cultural ties, this is a very moral point, not practical. Negative effects इसके होते हैं, जो कंट्री के स्किल लेबर है we derive of that, हमारी कंट्री में लैक ऑफ स्किल लेबर हो जाएगा, लो नेशनल इनकम हो जाएगी। इंटरनेशनल तो हमें बहुत पैसे आ रहे होंगे, रेमिटेंसेस आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज हो रही है, लेकिन जो कंट्री की नेशनल इनकम है वो तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि लोग काम ही नहीं करेंगे। और फिर लैक ऑफ डेवलपमेंट होगी। लोग बेशक बाहर जाके काम करना शुरू कर दें, लेकिन वो लोग इधर मुल्क में आके तो वो डेवलपमेंट नहीं करवा रहे ना। एग्जैक्टली। और जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ नहीं कर सकते, लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, अपनी स्किल लेबर को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे सकते, ऑब्वियसली वहाँ पे एक मुल्क की डेवलपमेंट क्या होगी? कुछ भी नहीं। ठीक है। Lastly, measures to be taken: utilize country's talents, provide better facilities, meaningful education, provide training and job opportunities. I think these are self-explanatory. And we've come to the last part of our chapter, seasonal migration. Reasons क्या होते हैं seasonal migration के? Transhumans के जो ये होती है ना, ये होती है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चले जाते हैं, और जब ज़्यादा सर्दी होती है तो लोग सदर्न यानी हॉट एरियाज़ डेजर्ट्स की तरफ आ जाते हैं। ये ट्रांस ह्यूमन्स होती है, नोमैडिक लाइफस्टाइल होता है। सीजनल माइग्रेशन क्यों होती है? क्योंकि लोग सीजन्स को देख के चलते हैं, और उनकी एम्प्लॉयमेंट पर भी डिपेंड करता है। लेट्स सपोज किसी बंदे देयर इज दिस एग्जांपल, एप्पल्स की एग्जांपल है कि एप्पल्स अफ्रीका में, I guess I have really forgotten the country, but चलें एप्पल्स को छोड़ें, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में कहते हैं कि फैसलाबाद में बड़े अच्छे मैंगोज़ आते हैं, सबसे अच्छे मैंगोज़ आते हैं, और वो इन्हीं मंथ्स में आते हैं, जून जुलाई अगस्त के महीनों में। तो जो लोग मैंगोज़ का बिज़नेस करते हैं वो इन 3 महीनों में सिर्फ काम करते हैं, और बाकी के महीनों उस काम से जो मुनाफा कमाया उससे कमाते हैं। दिस इज़ सीजनल माइग्रेशन। तो जैसे वो इस्लामाबाद में कोई मैंगो प्रोड्यूसर है, वो है, तो वो जून जुलाई अगस्त के महीने में इस्लामाबाद से वो फैसलाबाद माइग्रेट कर जाएगा अपने बिज़नेस के लिए। ये सीजनल माइग्रेशंस होती हैं, जो स्पेसिफिक सीजन्स के लिए माइग्रेट करते हैं लोग, और फिर दे कम बैक टू देयर प्लेसेस, या फिर दे गो टू अनदर एरिया इन अनदर सीजन। ठीक है। लास्ट हमारे पास होती है सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। दिस इज़ अनअटेनेबल इन पाकिस्तान मेरे ओपिनियन में, पर बहरहाल नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये सिर्फ हम लोग इसकी हाउ टू अचीव की बात करेंगे, क्योंकि टिल नाउ दिस इज़ नॉट बीन अचीवेबल।
increase awareness, maintain balance between resources and population, promote family planning methods. Development of resources is proportionate to population growth. Now how can you achieve sustainable population growth? सबसे पहली चीज़ increase awareness. लोगों को बताएं कि sustainable population growth से क्या होगा. दूसरी बात, मेंटेन बैलेंस बिटवीन रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन. रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन के अंदर बैलेंस होगा तो ही हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इनको फर्दर छोड़ सकते हैं. फिर प्रमोट फैमिली प्लानिंग मेथड्स. फैमिली प्लानिंग मेथड्स प्रमोट होंगे तो ही हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ पे थोड़ा कंट्रोल होगा. So yes, these are all the ways that we can promote sustainable population growth or achieve it. तो जी ये था हमारा एपिसोड 16 पॉपुलेशन फ्रॉम द ज्योग्राफी कोर्स सिलेबस. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों को समझ आएगा. कुछ नहीं समझ आया तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस. प्लीज़ नोट कि वी डू गिव फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस फॉर एवरी वन ऑफ यू हुज अपीयरिंग इन अक्टूबर नवंबर, या फिर जिन्होंने रिवाइज करना है या फिर जो अभी भी स्टार्ट करें. फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल फॉर दोज ऑफ यू who really need them. Just note कि we do take a few reasons कि why you need the classes, ताकि हम लोग सिर्फ उन लोगों को दें जिनको स्पेशली ज़रूरत है. सही है. So yes, we hope you enjoyed the video. If there was any query, then you can comment down below. We'll try our best to address it as soon as possible. Best of luck with your preparations.